Our next speaker is Mr. Asim Jaleel, having loads of experience in the field of sales, marketing management, and also human resource management. He has experience of working in the Middle East, Dubai, Abu Dhabi, Sharjah, Bahrain, and whatnot. He also served with Coca-Cola Export Corporation and Coke as General Manager, Rahimiyat Khan plant. Earlier, he worked at CCEPL head office as National Training and Development Manager. I request and invite Mr. Asim Jaleel. And the kind of audience we have, the kind of panels we have, I'm sure we are going to walk away with a load of information and knowledge of Pakistan retail industry. So I have a very short span of time for my presentation, and my topic is challenges faced by retail industry in Pakistan. So let me start my presentation, but let me start on a very light note. We Pakistani are a different breed altogether. We are unique in our lifestyle and approach. पाकिस्तान में हमारा सोच का अंदाज बहुत डिफरेंट है. दुनिया जहान में लोग कहते हैं थैंक यू वेरी मच. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. World of retailing and its challenges. I have taken 3 types of retailers. There are a lot of retailers, a lot of formats, but I will discuss about 3 only because I have got just 10 minutes to discuss with you. Bricks and mortar store, हम कहते हैं traditional store, online and e-commerce retailing, and then is vending machine retailing. ये तीनों फॉर्मेट्स डिस्कस करेंगे ब्रीफली. ब्रिक्स एंड मॉर्टर स्टोर रोज शॉपिंग करते हैं, we all know about it. These are conventional stores. Second is online e-retailer. Highest density of vending machines in Japan. अभी आपको उसके ऊपर डिस्कस करते हैं. So this is selling products directly to the consumers, 24-hour service. There are breakdowns, there are out of stocks. उसका भी solution आपको डिस्कस करेंगे. Now this is the biggest retailer in the world. Walton was an amazing operator. He was a very smart operator. अब आप उसकी जिंदगी को पढ़ना शुरू कर दें, उसका लाइफ स्केच देखें. He used to have very strong bonding with the drivers. जो ड्राइवर्स डिलीवरी करते थे, वो उनके साथ उनके ट्रक में बैठ जाता था और 100 किलोमीटर ट्रैवल करता था. And he used to say, I got great stuff ideas on business from these drivers. और हम क्या करते हैं? हमें ड्राइवर सलाम करता है, हम वर्टिकली न्यू करते हैं, उससे बात भी नहीं करते. एरोगेंस. और इसीलिए we are disconnected with our employees. जहाँ employees bonding नहीं होगी, employees switch करेंगे और जैन किस तरह से वो decision making में लोगों को शामिल करता था अपने employees को. We are not doing it. 1964 में पहला स्टोर खोला थे अरकानसास में, अमेरिका में. It was a very small store. और आज देखिए दुनिया का सबसे over 19 countries in the world. And इनका आइडिया क्या था? Low price and high volume sales. These are basically discount stores. Discount stores are not on very expensive location. Their interior is very ordinary and they don't have very good customer service as contrary to department stores. Jeff Bezos ने कमाल कर दी.
94 में पहला स्टोर खोला सियाटल में इन ए गराज. इट वॉज ऑनलाइन बुक शॉप. नाम उसने रखा इज कंसर्न. द लॉन्गेस्ट इज रिवर नाइल एंड बिगेस्ट इज अमेज़न. और उसकी थिंकिंग देखें कि उसने कहा कि मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को दुनिया में सबसे बड़ा बनाऊंगा, और वो उसने बना लिया. ऑलवेज थिंक बिग. इसका लोगो देखें आप. इट स्टार्ट्स, एरो स्टार्ट फ्रॉम ए एंड एंड्स एट जी. एवरीथिंग इज अवेलेबल फ्रॉम ए टू जी विद दिस रिटेलर. दुनिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स रिटेलर है. 38% मार्केट शेयर इन यूएस एंड 12% ग्लोबली. 575 बिलियन टर्नओवर. अगर इसके सारे बिजनेसेस को हम इंक्लूड करें तो ये इसका रेवेन्यू, इफ यू कंपेयर एप्पल टू एप्पल, देन इट इज लेस देन वॉलमार्ट. अब यहाँ पर आई वांट टू ड्रॉ एन एनालॉजी. ऑलवेज थिंक बिग. उसने सोचा मैंने बड़ा स्टोर बनाना है दुनिया का, और वो बन गया. आई एम स्पीकिंग. फेलियर इज नॉट अ सिन. एमिंग लो इज अ सिन. Failure is not a sin. Aiming low is a sin. Always think of the moon. Even if you will not reach there, you'll be in stars. Vending machine retailing in Japan. Just imagine, they have got 4 million machines operating in Japan, and population is 123 million. It is about 30 people. उसके बाद आपके डेबिट क्रेडिट कार्ड शुरू हो गए. अब कैशलेस ऑन द टेलीफोन यू कैन डू द बिजनेस, और यू कैन गेट एनीथिंग एंड एवरीथिंग, स्मॉल आइटम्स फ्रॉम. Now obviously if you compare with US, they have got more machines, but density is not 70 people with one machine. One machine is serving 60 or 70 people. In Japan, it's 30, 32 people. वैसे अमेरिका में आईफोन भी आप ले सकते हैं थ्रू वेंडिंग मशीन. तो आई वॉज जस्ट कॉम्प्रिहेंडिंग कि अगर पाकिस्तान में हम लगा दें एक मशीन, उसमें आईफोन रखेंगे, अल्लाह करे सुबह तक मशीन वहाँ पर मौजूद होगा. What to talk of iPhones? Challenges in retailing business. Challenges बहुत ज़्यादा हैं, but I'll discuss just few. Long working hours. इसी वजह से इनका नाम था mom and pop stores, because one individual cannot spend 14-15 hours at a stretch. So in a family, mom and pop used to change shifts. So it is known as mom and pop, और पाकिस्तान में इसको कहते हैं खजाना स्टोर या हट्टी. गाँव में कहते हैं हट्टी. हट्टी का मतलब होता है ब्रेक इवन भी यूज करते हैं. हम कहते हैं पहले साल चट्टी इज लॉस, दूसरे साल हट्टी इज ब्रेक इवन, एंड थर्ड ईयर इज प्रॉफिट इज खट्टी. दिस इज हट्टी एंड दिस इज मॉम एंड पॉप स्टोर की देसी वर्ड. टाइम बहुत देना पड़ता है इस बिजनेस में. एंड सेकंड, स्ट्रेटेजिक प्राइसिंग एंड ट्रेड मशीन. आपने देखा होगा यहाँ बाटा के हमारे दोस्त बैठे हुए हैं, इनकी प्राइस होती है 999 रुपीस. ये प्राइस क्यों रखी जाती है? Anybody with a smart answer? Yes. Odd numbers जो है वो customer को attract करते हैं. This is not psychological pricing, not at all, not even 1%. जब ये concept आया था, वो ये नहीं था कि customer को लगेगा मैं थोड़े पैसे खर्च कर रहा हूँ. No. It is to control pilferage while doing the business. जिस वक्त कस्टमर आके वहां पर पैसे देगा, उस कैशियर को टिल मशीन को खोल के ऑपरेट करके एक पॉइंट देना पड़ेगा. वहां पर ट्रांजैक्शन रजिस्टर हो जाएगी और पिलफेज के चांसेस कम हो जाएंगे. दिस वाज द मेन आइडिया बिहाइंड दिस प्राइसिंग. और ये प्राइसिंग रखी जाएगी और ऐसी टिल मशीन होगी तो चांसेस कम है. सिखाया है
और बहुत फायदे दिए हैं। अब सबसे चैलेंजिंग जो है दैट इज शॉपलिफ्टिंग। मैं अपॉलॉजिज टू द फीमेल सिटिंग हियर, खवातीन और बच्चे ज़्यादा शामिल हैं इसमें। रिसर्च ये कहती है उनके पास हैंड बैग होता है, उसमें वो लिपस्टिक डालती हैं, ले जाती हैं। शॉपलिफ्टिंग इन ग्रोसरी इज अ ह्यूज चैलेंज। एक पाकिस्तानी रिटेलर है, वेरी इंटेलिजेंट पीपल, उसने इसका सोल्यूशन ढूंढा है एंड दैट इज वेरी नॉवल सोल्यूशन। होती है, बाकी कस्टमर्स देख रहे होते हैं और रिटेलर भी एम्बैरेस हो रहा होता है, एंड इफ ही इज कॉट and the things are recovered, he will never ever visit that store, so you have lost a customer. इससे बचने के लिए उसने क्या किया, उसने आयल्स के एंड के ऊपर अपने लोग रखे हुए जब पीक शॉपिंग आवर्स होते हैं, अब वो लोग वॉच कर रहे हैं हर कस्टमर को। उसने देखा, ऑब्जर्वर ने, कि एक कस्टमर आया, उसने कुछ सामान उठा के जेब में डाल दिया या हैंड बैग में डाल दिया। जब उसकी शॉपिंग कंप्लीट हो गई, इस ऑब्जर्वर ने मैसेज कन्वे कर दिया कैशियर को कि इस कलर का बंदा आ रहा है, आपके सामने खड़ा हुआ है, इसका ये बैग है, ये खातून है, येलो सूट में, ब्लैक बैग हाथ में है, इसके पर्स में 1000 रुपए की लिपस्टिक्स है। उस कैशियर ने कहा जनाब आपका 5000 का आपकी बास्केट में है बिल और 1000 आपके पर्स में है, तो मुझे 6000 का बिल दे दे। एम्बैरेसमेंट से वो भी बच गया, रिटेलर भी बच गया। तो ये एक बहुत कॉमन फिनोमेना है शॉपलिफ्टिंग का, खास तौर पे ग्रोसरी इंडस्ट्री में। दिस इज अ बिग चैलेंज। कस्टमर ट्रैकिंग सिस्टम, ये एक सॉफ्टवेयर आया है, ये कस्टमर को ट्रैक करता है। द मोमेंट ही एंटर्स, ही वॉक्स इनटू द स्टोर, वहां पर उसको फॉलो करता है कि किस आयल में ये कितनी देर खड़ा हुआ, इसने कितनी देर उस प्रोडक्ट को देखा और आगे चला गया। पूरा उसका सर्वेलेंस होता है और वहां से भी आप डिटेक्ट कर सकते हैं शॉपलिफ्टिंग। सिक्योरिटी कैमरास डेफिनेटली होंगे और वेल लिट स्टोर, अगर स्टोर में रोशनी ज्यादा होगी तो चांसेस लीक हो जाते हैं शॉपलिफ्टिंग। Challenges in retailing business, physical stores, human resource turnover, unprofessional management. People don't leave organizations, they leave managers. If your manager is toxic, fastidious, he is a micromanager, people will not stay in that organization. अगर किसी एम्प्लॉई की बीवी भी बहुत खराब है, उसका बॉस भी बहुत खराब है, जब वो घर में जाएगा, बीवी का मुंह देखेगा, ऑफिस में जाएगा, बॉस का मुंह देखेगा, उसका मुंह वैसे फिटे मुंह हो जाएगा। अक्सर होता है। और वो जब दुनिया से जाएगा तो सीधा जन्नत में जाएगा, क्योंकि जन्नत भुगत के आ रहा है। ये कितना नुकसान करके जाएगा। He will leave the moment he gets his market salary and he will leave. Hiring cost है, जो कॉस्ट उस रिटेलर को बेयर करनी पड़ेगी। टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट, पॉलिटिक्स, सियासत, लैक फेवरिज्म। हमारे यहाँ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का कुछ सिस्टम नहीं है। जिसने बॉस के काम में ज़्यादा खबरें बन जाती, ही इज अ वेरी गुड एम्प्लॉय, उसको अच्छा बोनस मिलेगा, अच्छा इंक्रीमेंट मिलेगा। और दूसरे लोग जो हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, जो काम करते हैं नो वे। लैक ऑफ करियर ग्रोथ, अगर किसी एम्प्लॉय को वहाँ करियर ग्रोथ नजर नहीं आ रही, ही विल लीव द कंपनी। Now we are talking of online stores. Low trust in online shopping, fake products. TikTok, not KitKat. आप ऑर्डर किसी और वेबसाइट से करते हैं, प्रोडक्ट तो घर में और पहुंच रहा होता है। अभी मैं कल देख रहा था, नीमा आपा कह रही थी कि लोग मुझे कंप्लेन करते हैं कि आपा हमने आपकी वेबसाइट पर ऑर्डर किया, हमें कुछ और प्रोडक्ट मिल रही है। एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। पिक्चर कुछ और दिखाते हैं, भेजते कुछ और है। और लोगों को डैमेज प्रोडक्ट्स मिलती हैं और फिर वो फोन नहीं उठाते, कहते हैं हमारी रिटर्न पॉलिसी बड़ी लिबरल है। नो लिबरल, दे डोंट इवन अटेंड योर कॉल्स। मोस्टली बंद मिलता है। हाँ जी। Poor quality of product, late deliveries, payment problems, do not have debit credit cards,
people don't have. Avoid online banking, नहीं करते लोग, they are apprehensive. फोन गुम गया, फोन हैक हो गया, क्या होगा? Prefer cash payment, जिसमें returns के chances बहुत ज़्यादा होते हैं, and that is loss to the retailer. Delivery and logistics issues. Poor road infrastructure, difficult delivery access, especially रूरल एरियाज में और वर्ल्ड सिटी में यहाँ डिलीवरी बहुत मुश्किल है, वेरी डिफिकल्ट. इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनेट स्लो चल रहा है, कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा, स्पीड इज स्लो, लिमिटेड स्मार्टफोन एक्सेस, सबके पास स्मार्टफोन नहीं है, डिजिटल इलिटरेसी. इसके बावजूद देयर इज अ 13% ग्रोथ पर एनम इन पाकिस्तान. 13% ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, ई कॉमर्स इन पाकिस्तान. कस्टमर एक्सपेक्टेशन, हम सारे कस्टमर हैं, हमारी क्या एक्सपेक्टेशन है? फास्ट रिप्लाई, भाई फोन तो सुनो मेरा, फोन तो सुनो मेरी, नहीं सुनते. इजी रिटर्न एंड क्विक रिफंड्स. कस्टमर सर्विस नाम की चीज पाकिस्तान में नहीं है. सैम वॉल्टन कहता था, कस्टमर इज द बॉस, he can fire you while shopping elsewhere. हम क्या कहते हैं, जापान में कहते हैं कस्टमर इज अ गॉड, क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट गॉड तो डिफरेंट है. और हमारे यहाँ कस्टमर क्या समझते हैं, मैं वो कहना नहीं चाहता, आप समझ जाए. वेंडिंग मशीन, finding profitable location is a challenge. Schools, universities, petrol stations, malls, hospitals, transport hubs, factories and warehouses, यहाँ पे ये होनी चाहिए. Theft and vandalism, this is a possibility. इतना जबरदस्त सिस्टम है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में कि जब मशीन खराब होती है, स्पेशली मैंने जापान में स्टडी किया, तो यहाँ से एक मैसेज जाता है मशीन से, कंप्यूटर जनरेटेड, जो नजदीक कहीं मोबाइल वर्कशॉप होगी उसको मैसेज जाएगा कि मशीन कोड नंबर दिस इज आउट ऑफ ऑर्डर. 10-15 मिनट के अंदर अंदर टेक्नीशियन आएगा, उसको ठीक करके चला जाएगा. अगर वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया, 70% स्टॉक को मैसेज जनरेट करेगा, नजदीक कहीं जो वेयर हाउस होगा या डिलीवरी वैन होगी वो आके सप्लाई करेगा. Machine maintenance, breakdowns. This is all about my presentation. Thank you. Yes, sir. Ready? Ready, sir. 5. One more.